Yes, hi kids, how are you? I hope everything is fine. Today we'll take up the second lecture of derivative. Uh, Once again, I like everybody to repeat up the formulas with me. We have altogether 18 formulas, 20 formulas. First we'll have around 8 formulas of algebra. Constant का derivative 0, x raised पर n का derivative n, x raised पर n minus 1, ex का derivative ex, a raised पर x का derivative a raised पर x log a, then root x का derivative 1 by 2 root x, 1 by x raised पर n का derivative minus n by x raised पर n plus 1. Then the extra which I said, it is what? ax plus b whole raised पर n का derivative an ax plus b whole raised पर n minus 1. Then comes with the sixth trigonometric, sin का cos, cos का minus sin, tan का secant square, cot का minus cosecant square, secant का secant x tan x, cosecant का minus cosecant x cot x. Then comes the inverse, tan inverse x का 1 by 1 plus x square, cot inverse x is minus 1 by 1 plus x square, sin inverse x का 1 by under root of 1 minus x square, cos inverse x का minus 1 by under root of 1 minus x square. Then comes secant inverse x. Secant inverse x is 1 by x under root of x square minus 1. Cosecant inverse x is minus 1 by x under root of x square minus 1. इस तरह से आपने इनको दिन में 2-3 बार रिपीट करना है. प्लीज, अगर फॉर्मूले आते होंगे तो सब खेल खेल पाएंगे. अगर हमें फॉर्मूले नहीं आते होंगे तो हम कुछ भी खेल नहीं खेल पाएंगे. ये अभी हम टेकिंग अप द बेसिक डेरिवेटिव, जैसे हमने कल पढ़ा था. फर्स्ट लॉ इज व्हाट? द एडिशन सब्ट्रैक्शन लॉ. सेकंड इज प्रोडक्ट रूल. थर्ड इज quotient rule. Today again I will discuss of the same rules with you. Fine, take a few questions of the same rule with you. Now first question I will take up with you is question 1. Question 1, f of x is equal to 2x square plus 3x plus 5 by root x. Root x means the power is half. अब अकेला रूट है, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि अगर हम जब भी अकेला नंबर होगा अलजेब्रिक है तो हम उसको प्रेफर करेंगे कि हम डिवाइड कर दें. जैसे अगर हम डिवाइड कैसे होगा? बेस सेम है, डिवाइड करेंगे तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी. नाउ वी हैव 2x2 minus half. Now plus 3x1 minus half plus 5x raised power minus 1 by 2. Now this comes out to be 2x की power 3 by 2 plus 3x की power 1 by 2 plus 5x की power minus 1 by 2. Now we have differentiating with respect to x. क्या आता है? f prime x. It comes out to be, अगर आपको याद हो पावर रूल हमने पढ़ा था, वो पावर रूल क्या था डेरिवेटिव का? x रेज पर n is written as n x रेज पर n minus 1. ये पावर इधर आ जाती है और इसकी एक पावर कम हो जाती है. तो यहाँ पे भी अप्लाई द सेम. 2 3 by 2 x 3 by 2 minus 1. Then 3 half x 1 by 2 minus 1 plus 5 minus 1 by 2 x minus 1 by 2 minus 1. अब यहाँ पे हमने क्या किया? ये पावर को इधर लिया और ये पावर नीचे आ गई और ये माइनस सबके साथ ये किया. 1 by 2 आ गया, 1 by 2 minus 1, ये माइनस हाफ बाहर आ गया, minus 1. Now this will be 2 से 2 कट गया, बचा क्या? 3 x की पावर what? 1 by 2. This is 3 by 2. x की पावर is what? Minus 1 by 2. This is what? 5. Not, it is not 5. This is what? We have minus 5 by 2. x की पावर is minus 3 by 2. जो पावर नेगेटिव है वो नीचे चली जाएंगी. तो ये क्या होगा? 3 root x plus 3 by 2 root x minus 5 by 2. This comes out to be x root x. नेगेटिव नीचे आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. x की पावर 3 by 2 is written as x root x. Fine. First question is over. I hope everybody is clear. Now let's start with the second question. Second question में हमारे पास क्या है? Now we again have second question. Now second question क्या कहता है मेरे पास? Question 2 क्या कहता है? f of x is equal to x cube plus 1
इंटू एक्स माइनस टू बाय एक्स स्क्वायर। अब अगर इसको भी बड़े ध्यान से देखो तो यहाँ न्यूमिनेटर क्वोशिएंट भी लगता है, न्यूमिनेटर में देखो तो दो का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल भी लगता है। लेकिन थोड़ा सा हर चीज को अपने स्मार्टली देखना है कि यार प्रोडक्ट रूल कहाँ लगाना है, क्वोशिएंट रूल कब लगाना है। कई बार सीधा मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके क्वेश्चन ज्यादा छोटा हो जाता है इन कंपैरिजन टू I apply these rules, so you have to be very careful with it. That's a smartness which is needed. मैथ्स में यही छोटी छोटी स्मार्टनेस चाहिए, बाकी मैथ्स बहुत आसान होता है, ध्यान रखना। Now what I get from here, first I multiply. जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस x माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर। नाउ दिस का इफ आई डिवाइड, अब यहाँ पे डिवाइड करता हूँ तो बचता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर। नाउ अब इसका नाउ इफ आई डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आता है, f प्राइम x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x का माइनस 2 1 बाय x का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है ध्यान से देखना, 1 बाय एक्स स्क्वायर जो हमने रूल पढ़ा था वो रूल क्या था, 1 बाय एक्स रेज़ पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस एन एक्स रेज़ पावर n प्लस 1। ये पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती है और यहाँ पे पावर में क्या होता है 1 ऐड हो जाता है, तो उसके हिसाब से ये क्या होगा माइनस, ये क्या है 2 इंटू माइनस 2, ये 2 ऊपर चला गया, ये क्या आया x की पावर 3। नाउ वी गेट द आंसर इज व्हाट 2x माइनस 2 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय एक्स क्यूब। This was the question number 2. Now I'll take up another one with you. Now the next question is third one. It is f of x is equal to 3 raised power x tan x. Now it is a product rule. Now it is what? It is a product rule. प्रोडक्ट रूल में भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग स्ट्रेट अवे, इसमें कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधा विल गो फॉर अ डेरिवेटिव। ये क्या बनेगा f प्राइम x, दिस का डेरिवेटिव 3 रेज़ पावर x log 3, देन इट इज tan x प्लस व्हाट आई हैव 3 रेज़ पावर x, tan x का डेरिवेटिव इज secant स्क्वायर x। ठीक है जी। ना अब हम क्या करते हैं, यहां से 3 रेज़ पावर x कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं 3 रेज़ पावर x कॉमन लिया, बचा क्या log 3 tan x प्लस secant स्क्वायर x। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। एक और क्वेश्चन हम प्रोडक्ट रूल का लेते हैं, दैट्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमने क्या लिया, जैसे हमारे पास क्या था f ऑफ x is equal to x e x sin x. Now differentiating with respect to x, अब यहां पे जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो ये क्या आता है f प्राइम x। अब यहां पे इन तीन का प्रोडक्ट रूल है, पहले का डेरिवेटिव x का 1 e रेज़ पावर x sin x प्लस x, e का डेरिवेटिव e रेज़ पावर x का e रेज़ पावर x, then we have what sin x plus this is x e x, sin x का derivative is what cos x. Now what I'll do, I'll take up e raised power x as common, बचेगा क्या sin x plus x sin x plus x cos x। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या थी, तीन टर्म थी जिनका हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड एज इट इज प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड first third as it is plus derivative of third first second as it is। ठीक है, now coming down to the next one, the question number 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या लेते हैं, और I'll take a question जिसके अंदर हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट के अंदर भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल के अंदर भी वी हैव टू अप्लाई अ प्रोडक्ट रूल। जैसे अब देखते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, इट इज f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब cos x माइनस 2x tan x। अब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रोडक्ट आ गया, अब किस में प्रोडक्ट आ गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन में। नाउ वी हैव अ प्रोडक्ट रूल। नाउ
what we do in these kind of questions, differentiating with respect to x f prime x, एक्स क्यूब कट, अब इन दो के बीच में प्रोडक्ट है और इन दो के बीच में प्रोडक्ट है, इसको कैसे हैंडल करेंगे, ये क्या होगा 3x स्क्वायर cos x प्लस एक्स क्यूब cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, ठीक है, इन दो के बीच में प्रोडक्ट रूल लगा, फिर आगे माइनस ये एज इट इज, अब यहां पे क्या लगेगा, इन दो के बीच में प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो वी आर लेफ्ट विद व्हाट वी हैव 2 raised power x log 2 tan x, ठीक है, then we have what next, what we have is what 2 raised power x, ये क्या होगा secant square x, इसको जब मैं लिखूंगा वो कैसे लिखूंगा, यहां से क्या आएगा, इसमें से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आई कैन टेक आउट x square as कॉमन, बचा क्या 3 cos x माइनस x sin x, ठीक है, अगर आप दूसरे वाले को देखेंगे तो उसमें क्या होगा 2 raised power x as कॉमन log 2 tan x plus secant square x, ठीक है, this is the way it is, fine. Now coming on to the next one, a very good question which I consider as one of the best question of the product rule. Now this question is what, this question is f of x is equal to, ध्यान से देखना इसको, x sin x plus cos x into what I have next is x cos x minus sin x. Now what I did from here, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ये और इसके बीच में प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में जब मैं इसका प्रोडक्ट रूल लेता हूँ और इनमें ध्यान से इसको देखूंगा तो इन दोनों के बीच में भी फिर से प्रोडक्ट है, ठीक है, तो हम इन क्वेश्चनों को अच्छा गिनते हैं क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर एक और प्रोडक्ट रूल लग रहा है, ठीक है. नाउ हाउ वी डू इट, डिफरेंशिएटिंग with respect to x f prime x is what, now अब यहां पे इसका डेरिवेटिव है, जब डेरिवेटिव इसका ले रहे हैं तो इनका प्रोडक्ट पहले आएगा, वो क्या आएगा 1 sin x, then we have plus x cos x minus sin x, ठीक है, into x cos x माइनस साइन एक्स, ये सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस अब सेकंड का डेरिवेटिव मतलब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये क्या आएगा, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट वी हैव cos x, अब यहां पे ध्यान से देखना x एज इट इज, ये यहां पे cos का डेरिवेटिव इज व्हाट, यहां होना प्लस है, ये क्या आएगा माइनस sin x एंड दिस इज व्हाट माइनस cos x, फाइन. Now further if I write it down तो I get what, मेरे पास यहाँ पे क्या आता है sin x x cos x minus sin x into x cos x minus sin x plus what we have in this case, okay here we did an error, we have not written the first second function, यहाँ पे क्या होना चाहिए x sin x plus cos x, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया, ये आया cos x माइनस x sin x माइनस cos x into x sin x plus cos x, ठीक है. नाउ sin से हमने sin को कैंसिल कर दिया, यहाँ पे cos से हमने cos को कैंसिल कर दिया. नाउ इफ आई मल्टीप्लाई दिस कम्स आउट टू बी व्हाट x स्क्वायर cos स्क्वायर x माइनस x sin x cos x माइनस x स्क्वायर sin स्क्वायर x माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है. अब यहां पे क्या है, ये दोनों क्या है लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों क्या है लाइक टर्म्स हैं, तो व्हाट आई टेक अप एक्स स्क्वायर कॉमन, बचा क्या कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स. अब यहां पे ये दोनों देखोगे, ये दोनों के दोनों टर्म सेम है, तो यहां क्या आएगा माइनस 2x साइन एक्स कॉस एक्स. अब इसके बाद क्या आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट वी हैव cos 2x माइनस ये क्या आ जाएगा, दैट इज x sin 2x, ये मेरे पास आएगा. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, टेक केयर, इसके ऊपर यहाँ पे स्टार डाल देते हैं, ये एक प्रोडक्ट रूल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, टेक केयर. नाउ लेट्स टेक अप द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
next question we have is f of x is equal to, we have what, tan x plus secant x into cot x minus cosecant x. Sorry, it is plus cosecant x. Now how we solve this is a good question. Again putting star here. ठीक है, differentiating with respect to x, ये क्या है, f prime x. Now what I have, derivative of this. पहले हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव इसका लेना है. इसका डेरिवेटिव क्या है, tan का डेरिवेटिव क्या है, इट इज secant square x plus secant x tan x into cot x plus cosecant x. यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, पहले इसको डिफरेंशिएट किया, ये आया, फिर इसको एज इट इज लिखा, प्लस यहाँ पे क्या है, cot का डेरिवेटिव इज व्हाट, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस कोसेकेंट x cot x into first function as it is, that is what we have, tan x plus secant x. Now what I get from here, यहां से मैंने क्या किया, इसमें से secant x कॉमन लिया, secant x से मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पे, secant x plus tan x into cot x plus cosecant x. Now further what I did, यहां पे क्या लिया मैंने इन दोनों में से कॉमन, माइनस cosecant x कॉमन लिया, बचा क्या, cosecant x plus cot x. ये क्या आया मेरे पास, tan x plus secant x. This is what I get. ठीक है, अब इसमें बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये दोनों टर्म कॉमन है, तो जब दोनों टर्म में कॉमन लूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या, दैट कम्स आउट टू बी व्हाट, secant x plus tan x into cot x plus cosecant x into secant x minus cosecant x. ठीक है, ये एक छोटा सा रूल है, ध्यान रखना, जब भी मैं tan x plus secant x को डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, उसमें secant बाहर निकलेगा और बाकी क्या बचेगा, secant x plus tan x. जब भी मैं cot x plus cosecant x को डिफरेंशिएट करूंगा, बाहर क्या आएगा, माइनस cosecant x, बाकी cosecant x plus cot x एज बचेगा. ठीक है, नाउ लेट्स टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अगेन अ गुड वन. x by 1 factorial, x square by 2 factorial, x cube by 3 factorial, and so on till what I have, plus x raised power n by n factorial. नॉर्मली लोग इसके साइज सेंटर, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान, 2 लाइन में खत्म हो जाता है. नॉर्मली लोग फैक्टोरियल को देखते हैं और साइज को देखते हैं तो घबरा जाते हैं. आपने कभी भी क्वेश्चन को देख के नहीं घबराना, ये ध्यान रखना है. जब भी क्वेश्चन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी शक्ल लगे, उसको देख के एक अच्छी सी स्माइल देनी है जरूर. मेक दिस एज योर हैबिट ऑफ योर लाइफ. व्हेनेवर यू फाइंड समथिंग टफ, गिव अ गुड स्माइल टू इट एंड स्टे पॉजिटिव. यस, आई कैन डू इट. ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल वन. देखिए, ध्यान से देखें. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx, 1 का डेरिवेटिव इज व्हाट, 0. यहाँ पे क्या है, x का डेरिवेटिव इज व्हाट, 1 by 1 factorial. This is 2x by 2 factorial. This is 3x square by 3 factorial, and so on. This comes out to be plus n x raised power n minus 1 by n factorial. Now बड़े ध्यान से देखना, factorial 1 factorial मतलब क्या होता है, 1 factorial का मतलब क्या होता है, 1. तो what I'll go, this is what 0, I leave it, ये 1 लिखा. 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 into 1. क्या होता है, 2 into 1. तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये क्या बचेगा मेरे पास, x by 1 फैक्टोरियल. यहाँ पे क्या होता है, 3 से 3 कटेगा, 3 फैक्टोरियल होता है 3 into 2 into 1, 3 into 2 into 1. तो that comes out to be what we have, 3 से 3 कट गया, बाकी क्या बचा, 2 into 1, which can be written as 2 factorial. ऐसे यहाँ पे ये है, this comes out to be so until x raised power n minus 1. और यहाँ पे क्या होगा, n कटेगा, n क्या होता है, पहले n into n minus 1 into n minus 2, और ऐसे चलते चलते 1 तक जाएगा. जब n से n कट गया, बाकी कितना बच गया, n minus 1 factorial. ठीक है,
डरना नहीं, ध्यान रखना, फिर से रिपीट करो, मैंने इसे 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जब ऊपर 5 होगा, न्यूमरेटर में 5 होगा, तो ये 5 से कट जाएगा, तो ये बचेगा। ये क्या है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। दिस इज द वे आई कैन गो। नाउ व्हाट वी हैव दिस, अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, क्वेश्चन ना प्रूफ था। इस क्वेश्चन में क्या हमें प्रूफ करना था, हमें ये प्रूफ करना था दैट इज dy by dx plus x raised power n by n factorial is equal to y, is equal to what, y। ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्मार्टली यहां पे देखते हैं, हम इस वाली टर्म को दोनों साइड ऐड कर देते हैं, इस वाली टर्म को बाय एडिंग x raised power n by n factorial on both sides, दोनों साइड्स में मैंने ऐड किया, तो ये क्या हुआ dy by dx plus x raised power n by n factorial is equal to what I get 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial and plus so on till what I get plus x raised power n by n minus 1 by n minus 1 factorial plus x raised power n by n factorial। अगर मैं इसको बड़े ध्यान से देखूं तो दिस इज इक्वल टू योर y, जो मेरा प्रूफ है वो आ गया, ठीक है। अगर इफ आई रब इट अप तो व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, मेरे पास क्या आता है dy by dx plus x raised power n by n factorial is equal to what, y। दिस इज व्हाट आई हैव टू प्रूव, ये प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आया है मेरे को, ठीक है जी। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, लेट्स वी टेक अप in the next lecture with you, so please take care of it। और जो आज पढ़ाया है उसको दोबारा रिपीट कर लेना एक बार अपने आप, क्योंकि आखिरी के 2-3 क्वेश्चन जो थे बहुत अच्छे थे जो हमने किए हैं। हाँ, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, वंस अगेन सेइंग इट टू यू, आप में से किसी को भी मटेरियल की जरूरत हो, जिसको आपको देख लगता हो कि इसको देख के मैंने होमवर्क करना है या कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, आपने कुछ नहीं करना, नो चार्जेस आर देयर। दिस इज फॉर सिंपली फॉर द सेक ऑफ कि आप लोग घर बैठे हैं, खाली बैठे हैं, तो इस टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकें, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इट, ट्राइंग टू हेल्प यू आउट इन इट। आपने सिर्फ मेरे को व्हाट्सएप करना है, उस व्हाट्सएप नंबर जो है वो क्या है, दैट व्हाट्सएप नंबर इज व्हाट 999904855533, ठीक है जी। दोबारा रिपीट करता हूं, द नंबर इज 9990485533। डोंट शाई ऑफ मेकिंग अ व्हाट्सएप टू इट, डोंट कॉल, जस्ट व्हाट्सएप इट योर डिटेल एंड व्हाट यू वांट दैट कंप्लीट। इसमें से भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया और यू वांट सम एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू हैव, you can just WhatsApp, अगर जरूरत पड़ेगी तो we'll call you from our end, so don't worry, stay positive, enjoy it। My name is Gurpreet Singh Sahni। Please take care, be positive, stay positive, हंसते रहना, enjoy करना, कोई चीज बहुत मुश्किल लगे उसको भी enjoy करना। Please take care, God bless you, stay positive।